Good evening, students. In this video, we will see the calculations of cell potential using Nernst equations. Okay, let us consider a cell Zn, Zn2 plus ion, double vertical line Cu2 plus ion, C. This double vertical line represents a salt bridge, means a cell is made up of two electrodes. One is zinc electrode and other is copper electrode. In zinc electrode, zinc is dipped in the solution of Zn2 plus ion, and in copper electrode, copper is dipped in the solution of Cu2 plus ion. Copper electrode will act as cathode and the zinc electrode, as you know, it acts as anode. So we have to find out EMF of this cell. Okay? We have to derive an expressions for the Nernst equations to calculate the EMF of the cell, right? So now the E cell equal to, means cell potential equal to, E cathode minus E anode. मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस कर दोगे बेटा, तो यू विल गेट सेल पोटेंशियल, राइट? तो सबसे पहले हम लोग कैथोड लेंगे. व्हाट इज कैथोड? कैथोड इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड. व्हेनेवर यू राइट द reaction of a single electrode, it is always treated in terms of reductions. Therefore, the general reaction at cathode will be Cu2 plus ion plus 2 electron gives C, right? Cu2 plus ion plus 2 electron gives C, and ECU2 plus ion, Cu means reduction potential of copper electrode, equal to E naught Cu2 plus ion, Cu minus 2.303 RT by NF log concentration of copper metal divided by concentration of Cu2 plus ion. In this case, N will be equal to how much? N will be equal to 2. N कितना हो जाएगा बेटा? 2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. You may write it E cathode equal to E naught cathode, C for cathode, minus 2.303 RT by NF. N is the number of moles of electron gained. 2 है ना, N के जगह में 2 होगा. लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन. ठीक है. लेट अस कंसीडर इट इक्वेशन. नाउ come to anode. What reaction will take place at anode, beta? Whenever we write a single electrode reactions, it is always written in terms of reduction. So general reaction at anode. General reactions क्या होगा? In this case, Zn2 plus ion. ठीक है. In anode, zinc rod is dipped in the solution of Zn2 plus ion. Zn2 plus ion plus 2 electron gives zinc. Right. So we can write E Zn2 plus ion Zn equal to E naught Zn2 plus ion Zn minus 2.303 RT by NF log concentration of zinc divided by concentration of Zn. Okay, right? Is it clear? Note down. Now, E Zn2 plus ion Zn, it represents the reduction potential of zinc electrode. E naught Zn2 plus ion Zn, it represents the reduction potential, standard reduction potential of zinc electrode.
2.303 are molar gas constant, T is temperature. The value of N will also be here 2, N equal to 2 यहाँ भी होगा. Why? यहाँ भी N equal to 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. R है मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F 1 फैराडे, जिंक concentration of zinc divided by concentration of Zn. Now this is anode, therefore we can write E anode equal to E not anode. इसको हम ऊपर लिखते हैं, दिखाई देगा, यहां तक लिख लियो ना. ठीक है, यहां से लिखते हैं. यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? ई एनोड इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग जिंक का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय Zn. This is equation number 2. Now, how can we calculate the EMF of the cell? EMF of the cell equal to E cathode minus E anode. तो यहां क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? E कैथोड माइनस E एनोड, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. राइट, माइनस कॉमन हो जाएगा, 2.303 RT बाई NF लॉग Cu डिवाइड बाई Cu2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन माइनस लॉग Zn डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस आयन. ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज इक्वल टू ई से ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. दिस इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस 2.303 RT बाई NF. अब log m माइनस log n इक्वल टू क्या लिखते हो? log m बाई n, ये डिवाइड बाई ये, यानी Cu डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाई Zn डिवाइड बाई Zn2 प्लस आयन. तो क्या हो जाएगा भाई? Zn2 प्लस आयन ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई Zn का कंसेंट्रेशन. एक एग्जाम्पल, Cu और Zn ये सॉलिड स्टेट में, इसका कंसेंट्रेशन कितना ले लेंगे? 1. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Zn2 plus ion concentration divided by Cu2 plus ion concentration. This equation can be used to calculate the cell potential of which cell? This cell Zn, Zn2 plus ion, double vertical line, Cu2 plus ion, single vertical lines. T temperature in Kelvin scale. देखो बेटा, इस जगह आपको क्लियर है कि अगर किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे और उससे किसको माइनस कर देंगे? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे. तो क्या निकल जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल. तो सेल पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड. लेकिन अब इसी को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन पे डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है, तो एक जनरल हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे. सबसे पहले उसके लिए एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखना होगा.
तो इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, देखिए मान लो कोई भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सेल रिएक्शंस लिखना होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शंस लिखना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ठीक है ना। और इन ऑर्डर टू राइट द नस्ट इक्वेशंस डायरेक्टली, फर्स्ट वी कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, सॉरी फर्स्ट वी राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दैट सेल। सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन लिखना होगा। तो मान लो इन जनरल फॉर a redox reaction involving transfer of n mole of electrons from anode to cathode, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एक तो आपका एनोड होगा, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड, और एक दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कैथोड कहलाता है, ठीक है। जब सेल रिएक्शन होता है तो सेल रिएक्शन के बाद यहां से यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मान लो 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, द रेडॉक्स रिएक्शन इज AA plus BB gives CC plus D. A is a small a is a coefficient of capital A, small b is a coefficient of small capital B, small c is a coefficient of small c, and small d is a coefficient of D, ठीक है। तो देखो what will the Nernst equations, Nernst equation for cell potential will be, क्या हो जाएगा बेटा, E cell इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल जानते हो, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है। व्हेन वी राइट अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो E नॉट से माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन C पावर C D पावर D, ये जो C है कोफिशिएंट है C का, D का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल d, डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर स्मॉल है, concentration of B power small, right? तो E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log concentration of C power C, concentration of D power D divided by concentration of A power A, concentration of B power B, right? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही हो जाएगा इसका इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे लिखेंगे क्या चीज, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई एफ, इसका वैल्यू तो मालूम है कितना हो जाएगा, 0.059, वेरी गुड, पढ़ रहे हो इसका मतलब, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसेंट्रेशन ऑफ D पावर D, कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर, तो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शंस। दो तीन बातें जो याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज टेकन टू बी यूनिटी, से पहले भी बताए थे, सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा कितना लेना है, 1, ठीक है, 1 मोल पर लीटर, एंड कंसंट्रेशन विल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर इन बार, याद रखना, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस
concentration of gases are expressed in terms of their respective partial pressure in bar। ठीक है बेटा। अब देखो जरा सा 2 मिनट का, इसको हम एक अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं बेटा। इस ठीक देखो, इक्वेशन है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। मान लो Zn2 प्लस आयन, ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन दे दिया है हमको, मान लो C1 मोल पर लीटर। डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है ना वासु, Ag प्लस आयन, इसका कंसंट्रेशन है C1 मोल पर लीटर। सिंगल वर्टिकल लाइन सिल्वर, ये दिया हुआ, ये दोनों सॉलिड स्टेट में, मतलब 2 इलेक्ट्रोड है। ये है एनोड। एनोड में क्या है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ Zn2 प्लस आयन हैविंग कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर। और ये कैथोड में क्या है, अ सिल्वर रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस आयन हैविंग कंसंट्रेशन सॉरी दोनों जगह C1 हो गया, इसको लिखेंगे C2 मोल पर लीटर। ठीक है, हमको नस्ट इक्वेशन लिखना है फॉर सेल पोटेंशियल। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, first we write the overall cell reactions. What will be the overall cell reactions? At anode, Zn gets oxidized to Zn2 plus ion. Very good. At cathode, Ag plus ion gets reduced to Ag. यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इक्वेशन कैसे बैलेंसिंग करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, खंडाला, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, Zn प्लस 2Ag प्लस आयन गिव्स Zn2 प्लस आयन प्लस 2। थोड़ी थोड़ी पढ़ा करो, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शंस। अब हमको ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट में किसका लिखेंगे, कंसंट्रेशन Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा। सिल्वर और जिंक का कंसंट्रेशन कितना लेंगे, 1 मोल पर लीटर, इसीलिए कट गया, खत्म हो जाएगा। सिर्फ आयंस का लेगा होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन 1 लेते तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे मेरा बात को। अब मान लो यहां पे n का वैल्यू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हो रहा है, 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना होगा, 2। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिनका यहाँ 0 है, यहाँ +2 हो गया, 2। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 1 सिल्वर का यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 का हुआ 1 से डिक्रीज, 2 का कितना से हो जाएगा, 2 से। n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 2। और आर टी, अगर t इक्वल टू हम लोग ले रहे, t इक्वल टू 298 कैलविन, तो 2.303 RT बाई F क्या हो जाएगा, 0.059। तो वी कैन राइट ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। n कितना हो गया बेटा, 2 लॉग Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन C1 है, डिवाइड बाई Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन C2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते हो। और ई नॉट सेल क्या हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या हो गया, मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है,
सिल्वर मतलब ए नॉट ए जी प्लस आयन ए जी, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रहेगा या न्यूमेरिकल में दिया होगा, माइनस ई नॉट ए नोट, ई नॉट ए नोट क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट Zn2 प्लस आयन Zn, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा घर